So I have been receiving lots of text message since I was in my master's group, and everyone was asking me how you cleared UGC net in first attempt, and how you got the scholarship, and what to do to get admission in PhD. So this video is for all of them because it was very tedious to reply to everyone. So I thought I'll make a short video on it. So first thing, the first common paper is aptitude, and for aptitude people usually go for 300 to 400 pages, this huge book, and which is very tiring and boring. So what I did was I used YouTube. There is a playlist of Kumar Bharat sir. He has explained each and every topic like research aptitude, teaching aptitude, ICT, decimal conversion, everything. He has explained every topic in 10 minutes, and after you finish a particular topic, you just switch to PYQs and see all the PYQs. And if you think that this particular thing I haven't read, then you go and read it again, or find do the research on it ki why is this question I have not seen or read. So this is the thing you can do, like go through the video, go through the PYQs, go through the video, go through the PYQs. I did the same thing. And for quants and reasoning, because I was studying for UPSC, I had I used to watch Rishabh sir's quants videos in UPSC. Physics wala, in physics wala, Rishabh sir used to teach us quants. So I went through all the Rishabh sir's video. So I think he has his videos in on YouTube also, so you can go through his videos for quants and reasoning. But the main difference between UPSC aptitude quants and UGC net quants is UPSC quants are way like very complicated and high level quants, but UGC net quants is very basic and you can clear it. So as compared to UPSC, UGC net quants and reasoning are easy. So this is the thing you can do for aptitude, like Kumar Bharat sir's video playlist where he has explained all the topics, all the you can go through all the PYQs, and also Kumar Bharat sir has also uploaded PYQs of that particular topics, so you can go through that videos. And quants and reasoning, you have to do it daily. You have to practice quants and reasoning daily, because you have to solve the questions very fast, like in 1 minute you have to solve the entire question of quants and reasoning. So you need daily practice for it. Second thing is subject specification. Like now if I have now this is only for history, people who are going to give UGC net in history. So the first basic thing that helped me clear this UGC net was, because I was studying for UPSC, my optional was history. I had a very good command on ancient, medieval, modern world, art and culture. Everything I had a command on, and it was on my tip of tongue की if ये site है तो इसमें क्या मिला है, या फिर इसमपुर पैलियोलिथिक एज का अर्ली पैलियोलिथिक एज का साइट है, या फिर कालीबंगन इज एन हरप्पन साइट जहाँ पे बैंगल्स मिले थे, लोथाल डॉकयार्ड है. तो पिकलिकल पुरजा होम एक न्योलिथिक साइट है जहाँ पे एक डॉग मिला था विद बरीड विद हिज ह्यूमन मास्टर. सो यू शुड हैव अ कमांड ऑन ऑल दिस. सो विल स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट. एंशिएंट में द थिंग्स यू नीड टू स्टडी इज साइट्स एंड द लोकेशन. अगर मुझे पूछ रहा है कोई कि ईसमपुर कहाँ पे है, तो मुझे पता होना चाहिए कि ईसमपुर कर्नाटका में है. तो जैसे फिर बुर्जा होम कश्मीर की साइट है. तो वैसे बहुत सारे साइट्स है. चौपानी मांडो, वेयर इज चौपानी मांडो. देन हथनौरा इज इन MP. सो यू शुड नो ऑल द साइट्स एंड द लोकेशन. यू शुड नो साइट्स और उसमें क्या मिला है. तो दैट इज फॉर स्टोन एज, हरप्पन, एंड ऑल्सो लाइक मौर्यन साइट्स भी बहुत सारे हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू इट all the sites and location. Then second thing is architecture. Architecture is also very important, because अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म पे, बुद्धिज्म जैनिज्म is the favorite topic, and बुद्धिज्म जैनिज्म
को आपको थरली पढ़ के जाना है और एवरीथिंग पढ़ के जाना है बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म में अगर आप बुद्धिज़्म का आर्किटेक्चर भी आपको पढ़ना है कि स्तूपा क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, मेडी क्या होता है, एंड बुद्धिज़्म में यू हैव टू ऑल्सो कि बुद्धा कौन से क्लैन के थे, every personal information about Buddha and Mahavir you have to know। एंड बुद्धा के डिसाइपल्स महावीर ने कहाँ पे समाधि ली, या फिर बुद्ध ने कहाँ पे समाधि ली, लाइक महापरिनिर्वाणा जिसे कहते हैं। तो यू शुड नो एवरीथिंग कि फर्स्ट स्पीच कहाँ पे हुआ बुद्धा का, फर्स्ट उनको निर्वाणा कहाँ पे मिला, ये एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। उसका ऑल्सो द आर्किटेक्चर, नगरा आर्किटेक्चर, नगरा आर्किटेक्चर, विजयनगर आर्किटेक्चर, मिडिवल का भी आर्किटेक्चर यू शुड नो, एवरी आर्किटेक्चर यू शुड नो। तो देन यू शुड नो द क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स की पहले ये हड़प्पा के बाद लेटर वैदिक एज आया, महाजनपद आया, महाजनपद के पास पहला रूलर कौन था, हरियनका डायनेस्टी था, फिर ये आया शिशुनग आया, मौर्य आया, गुप्ताज आए। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी। मिडिवल में ऐसे हो जाता है कि यू हैव टू नो लाइक चोलास कब आए, चोलास के कंटेम्पररी कौन थे, राष्ट्रकूटास कब आए, उनका डेट, उनका सेंचुरी। यू शुड नो दिस क्रोनोलॉजी बिकॉज दैट इज़ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट, जहाँ पे उन लोग क्रोनोलॉजी भी पूछ रहे हैं और वो इवेंट भी पूछ रहे हैं, डायनेस्टीज का क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, रूलर्स का क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, इसके बाद कौन था। फिर रूलर्स, अभी चोला डायनेस्टी पर्टिकुलर, उनमें पहले कौन था, पहले किंग कौन था, विजय राजा था, राजा राज था, फिर कौन था। तो ये भी पूछते हैं उन लोग कि रूलर्स का क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं। फिर मौर्याज में द मेन थिंग इज यू हैव टू नो ऑल द अशोकन एडिक्ट्स एंड पिलर्स, ऑल द कि हर इंस्क्रिप्शंस क्या बोल रहा है अशोक का, हर एडिक्ट क्या बोल रहा है, रॉक कट एडिक्ट क्या है, माइनर और मेजर पिलर रॉक एडिक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर साउथ इंडियन टर्म्स भी पता होना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे अरासर इज़ द रूलिंग क्लास, वेलालार इज़ द एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडियन टर्म्स क्या होता है। मैंने तो एक ऐसे पेज पे सब लिख के रखा था, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बिकॉज आई डोंट नो साउथ इंडियन हिस्ट्री थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए यूजीसी नेट ने मतलब साउथ इंडियन टर्म्स कन्फ्यूजिंग होते हैं क्योंकि वो अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कन्नड़ा में बोल रहे हैं या तमिल में बोल रहे हैं या कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपन पर्टिकुलरली वो गेस भी नहीं कर सकते कि ये कन्नड़ा वर्ड है या फिर ये तमिल वर्ड है। तो इसलिए साउथ इंडियन के वर्ड्स के मैंने सारे लिस्ट बना के रखे थे एंड उसको क्या बोलते ये भी बना के रखा था। तो आप रट्टा तो नहीं मार सकते बट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो संगम, चोलास, विजयनगर, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सारा यू शुड नो कि अभी जैसे कि जहागीरदारी सिस्टम था, तो जिसमें अलतंखा जहागीर जो था, ऑल द जहागीर के टर्म्स, और उसमें जो अलतंखा जहागीर था वो अकबर के बाद आया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अलतंखा जहागीर क्या होता है, वो कब आया था, और टाइप्स ऑफ जहागीर्स एंड ऑल। फिर भक्ति मूवमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। भक्ति मूवमेंट्स में द क्रोनोलॉजी ऑफ सिख गुरुज बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु नानक, फिर गुरु गोबिंद, वो सब आपको पता होना चाहिए उनका क्रोनोलॉजी, और उन्होंने किसने क्या लिखा था, गुरु अर्जान देव के वक्त आई थिंक क्या हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए कि गुरु अर्जान देव के वक्त गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल्ड किया था गुरु भाईदास ने। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर मराठास का भी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके टर्म्स, शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। पिलर इंस्क्रिप्शन, हर्षा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, या फिर सतवाहनास का एक इंस्क्रिप्शन था उसमें क्या लिखा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर कंटेम्पररीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली अकबर के टाइम के जो कंटेम्पररीज थे, जैसे पूछेंगे कि संत एकनाथ अकबर के कंटेम्पररी थे या फिर संत तुकाराम किसके कंटेम्पररी थे, तो ये सब आपको पूछेंगे। जहांगीर के वक्त कंटेम्पररी, सेंट्स और रूलर्स का कंटेम्पररी पूछेंगे कि कौन था। तो वर्क्स भी पूछेंगे कि किसने क्या लिखा है, जैसे मुद्रा राक्षसा लिखा है,
मुद्रा राक्षसा किसने लिखा है, फिर जैसे कामसूत्रा वात्स्यायन ने लिखा है, या फिर हर्षचरित्र बाना भट्ट ने लिखा है फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आते ही आपको सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स पता होने चाहिए फ्रॉम 1773 टू 1947। ये आपको हर एक एक्ट पता होना चाहिए कि उसमें क्या हुआ, 1773 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर वो सब आपको अच्छे से रटा होना चाहिए। फिर ट्रिटी जो भी ब्रिटिशर्स और रूलर्स के बीच में जो ट्रिटी साइन हुई वो याद होना चाहिए, उनके डेट्स याद होना चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। फिर एक इवेंट और उसका डेट, ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे, सारी इवेंट्स देंगे, उनके डेट्स देंगे कि कब कब हुआ था, और आपको सीक्वेंस वाइज उसको टैग अलोंग करना है। फिर स्टेटमेंट्स भी पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट है, ये किसने बोली थी, या फिर ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप PYQs देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs में से ही आ जाते हैं, तो और आपको एक अंदाज़ा भी आ जाता है कि क्या पूछ रहे हैं और क्या नहीं पूछ रहे। फिर कांग्रेस के सेशंस सारे, और किसने प्रिसाइड किया था और किस सेशन में क्या हुआ था, वंदे मातरम सबसे पहले कौन से सेशन में बोला था, या फिर ये सब आपको पूछ सकते हैं कांग्रेस सेशंस, और किसने क्या प्रिसाइड किया था, तो वो सब पूछ सकते हैं। फिर इस नागपुर सेशन में क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था, या फिर ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और रीजनिंग भी पूछ सकते हैं, जैसे कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था तो पर क्यों किया था, और 4 ऑप्शंस आपको देंगे, और वो चारों ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि क्यों किया था, और आपको सब ऑप्शंस वैलिड लगता है, तो इसके लिए आपको PYQs गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया आपको, बट मोस्टली तो आपको PYQs जितना PYQs देख सकते हो। PYQs के लिए मैंने अश्विनी सर का PYQs मैराथन देखती थी, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, जब भी मेरे को बोर आता था मैं 2x पे लगा के उनके सारे PYQs देखती थी, और मैंने इतने PYQs देखे जिससे मुझे अंदाज़ा आया कि क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते, और मैं वैसे फिर पढ़ती थी। तो आप भी PYQs करना, और फ़िलहाल मुझे इतना ही, जितना मुझे याद आ रहा था मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने गए दिसंबर में क्लियर किया था, तो अब मुझे इतना आइडिया आ नहीं रहा है, बट मेरे को जितना था मैंने बता दिया। एंड अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं पक्का आपको वापस वीडियो बना के बताऊँगी। बाय।